Hello everyone, myself Professor Priyanka Lote from Viva College of Diploma Engineering and Technology. Today we will start our sixth chapter of Highway Engineering, and this is our last chapter of Highway Engineering. The weightage of this chapter is 10 marks. Chapter name is Drainage Maintenance and Road Repair. Okay. So today we will start part 1. The content covered in this chapter, the first one is the introduction. Okay. Why the highway drainage is required. Then importance of highway drainage. Then requirement of good drainage system. Then types of road drainage. There are total 3 types of road drainage system. One is surface drainage, second one is a subsurface drainage, and third one is a cross drainage. Then subparts of subsurface drainage and cross drainage. Then fourth one is the difference between surface drainage and subsurface drainage. Then necessity of maintenance of the road, then classification of maintenance of the road, and last one is a maintenance of different types of road. Okay, all of you studied in 4th chapter the types of road, that is earthen road, WBM road, then bitumen road, cement concrete road. So how to maintain this road with the different types. Okay. So let us start with the introduction part. What is highway drainage? Okay. So it is a process of removing and controlling the excess surface and subsurface water within the pavement, or we can say the right of way. All of you know the right of way. In 2nd chapter you might be studied what is right of way. Okay. Then second point is the installation of the suitable surface and subsurface drainage system is an essential part of highway drainage and construction. So before going for the construction of the highway, we should study the character of the particular location very well. So we must know the rainfall at site, then soil properties at construction site, then type of construction, whether it is embankment or cut section. So all these things we should know. So if the water is not diverted from the pavement, it leads to the various failure like pothole, cracks, ruts, corrugation. Therefore the highway drainage system is very important in highway construction. So start with the importance of highway drainage system. The first point, the entrance of water in the soil subgrade of the pavement causes considerable decrease in its bearing strength, and thus the pavement is likely to fall due to poor strength of the subgrade. Okay. अभी यहाँ पे आप लोग ने चैप्टर में टाइप्स ऑफ पेवमेंट के और जो लेयर्स है वो स्टडी किए. तो फर्स्ट लेयर है सबग्रेड, देन है सब बेस कोर्स, बाइंडर, एंड अपर है सरफेस कोर्स, एंड यहाँ पे होते हैं सील कोट, प्राइम कोट एंड बैक कोट. ओके, तो ये आप लोग ने पहले चैप्टर्स में सब स्टडी किया है. तो जो सबग्रेड वाला पोर्शन है, ओके, जो बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ द पेवमेंट है, वहाँ पे क्या है कि जो पानी है कि जो जमा हो रहा है, अभी ये जो पार्ट रहेगा वो बिलो द ग्राउंड लेवल रहेगी, ये लेवल्स. सो जो सबग्रेड सिस्टम है उसके लिए क्या चाहिए, एकदम प्रॉपर सबग्रेड सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम चाहिए. ओके, जो अगर सबग्रेड में यहाँ पे पानी आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, जो बॉटम मोस्ट लेयर है उसका ही क्या होगा, जो बेरिंग स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ होगा. तो जैसे ही बॉटम मोस्ट लेयर का डिक्रीज़ हुआ बेरिंग स्ट्रेंथ, तो अपर कोर्स भी क्या हो गए, उसके भी स्ट्रेंथ क्या हो गए, पूरे डिक्रीज़ हो जाएंगे.
देन नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट कॉजेज द क्लेई masses of the road bed to expand considerably, which may sometimes results in the pavement failure. Okay, excess moisture content है तो भी causes होते हैं pavement failure के. Then excess water on the shoulder and the pavement edges causes considerable damage. Okay, अभी यहाँ पे क्या है, शोल्डर सबको पता है, जो पेवमेंट है उसके बाजू में 2 मीटर या 2.5 मीटर्स विड्थ जो प्रोवाइड करते हैं उसे शोल्डर बोलते हैं. शोल्डर का पर्पस भी सबको पता है. ओके, सो शोल्डर में अगर पानी जमा होता है, ओके, सो पानी तो क्या होगा, जो एजेस है पेवमेंट के एजेस है, लाइक यहाँ पे सपोज एज है पेवमेंट का और ये सपोज पार्ट है शोल्डर का, तो यहाँ पे क्या होगा, जो पेवमेंट का एज है वो डैमेज होगा. ओके, सो अगर इसका प्रिकॉशन क्या कर सकते हैं हम लोग कि प्रॉपर हम लोग को क्या कैम्पर प्रोवाइड करना है ताकि शोल्डर पे पानी एक्सेस वाटर है वो पेवमेंट से डायरेक्टली शोल्डर एंड शोल्डर टू साइड गटर में इजीली जा सकता है. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है पुअर ड्रेनेज ऑफ द रोड ऑल्सो कॉजेज वॉशिंग आउट द प्रोटेक्टेड टॉप सरफेस. ओके, पुअर ड्रेनेज सिस्टम है कि प्रॉपर साइजेस नहीं है, प्रॉपर कैम्बर नहीं है, तो क्या होगा, ये जो अपर सरफेस है वो भी वॉश आउट होगा. मीन्स ये सील कोट है, जो बिट्यूमिन लेयर होता है वो भी वॉश आउट होने के चांसेस होते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट है वेव एंड कोरुगेशंस आर फॉर्म ड्यू टू पुअर ड्रेनेज इन द फ्लेक्सिबल पेवमेंट. दिस ऑल्सो कॉज द मड बम्पिंग इन रिजिड पेवमेंट. All these defects leads to the pavement failure. अभी वे फ्लेक्सिबल पेवमेंट का जो एग्जाम्पल है वो बिट्यूमेन रोड है एंड रिजिड पेवमेंट का जो एग्जाम्पल है वो सीमेंट कंक्रीट रोड है. ओके, सो सीमेंट कंक्रीट में एंड बिट्यूमेन रोड में कैसे डिफेक्ट आ सकते हैं अगर पुअर ड्रेनेज सिस्टम रहा तो, जैसे वेव एंड कोरुगेशन ये किस में होता है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट. फ्लेक्सिबल पेवमेंट मीन्स बिट्यूमेन पेवमेंट, तो ये पुअर ड्रेनेज सिस्टम से ये चांसेस होते हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट में डिफेक्ट आने के. सो रिजिड पेवमेंट में क्या होगा, मड पंपिंग होगा. मड पंपिंग इन शॉर्ट कि जैसे ये जॉइंट्स है, ओके, तो जॉइंट्स में ये श्रिंकेज क्रैक्स है या क्रैक्स आ जाते हैं, तो क्या होता है जैसे ही व्हीकल पास होता है ये जॉइंट से, सो जो स्लरी होती है मड की स्लरी वो क्या होती है, ऐसे अप आ जाती है. ओके, बिकॉज सब यहाँ पे स्लरी जमा होता है, पानी जमा होता है. तो ये दो कॉजेस है रिजिड पेवमेंट पे एंड फ्लेक्सिबल पेवमेंट में अगर हम लोग प्रॉपर ड्रेनेज प्रोवाइड नहीं करते हैं. देन लास्ट पॉइंट है द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर रीचेज टू फ्रीजिंग पॉइंट, द फ्रोस्ट एक्शन ऑफ वाटर एंटरिंग द पेवमेंट स्ट्रक्चर में कॉज द क्रैक ऑन दी रोड पेवमेंट. जहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट है लाइक हिली एरियाज है वहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं फ्रोस्ट एक्शन से, जो पानी अंदर जाता है पेवमेंट स्ट्रक्चर में और क्रैक्स रोड पे आते हैं. ओके, तो इसीलिए हम लोग को क्या करना है, सभी जो ड्रेनेज सिस्टम है क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट है वो भी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. रिक्वायरमेंट ऑफ गुड ड्रेनेज सिस्टम. अभी रिक्वायरमेंट में क्या होगा कि जैसे हम लोग ने अभी क्यों होता है कि कॉजेज फेलियर, तो उसके लिए हम लोग को प्रिकॉशनरी मेजर्स भी प्रोवाइड करना पड़ते हैं. तो उसके लिए हम लोग ने सरफेस ड्रेनेज सिस्टम एंड सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम जो प्रोवाइड किया है, तो इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स के पॉइंट्स देखते हैं. द सीपेज एंड अदर सोर्सेज ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर शुड बी ड्रेन ऑफ बाय सबसरफेस ड्रेनेज सिस्टम. ओके, भी जो अंडरग्राउंड जो सरफेस के ऊपर है, ओके, उसे बोलते हैं सरफेस ड्रेनेज. जो ग्राउंड वाटर के नीचे है उसे बोलते हैं सब सरफेस ड्रेनेज. नॉर्मली सब सरफेस ड्रेनेज है वो हम लोग को दिखता नहीं है बिकॉज हम लोग क्या करते हैं वो पूरा कवर कर देते हैं. ओके, तो जहाँ पे सीपेज फ्लो है तो सीपेज फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम लोग को सब सरफेस ड्रेनेज प्रॉपर प्रोवाइड करना पड़ेगा. देन सेकेंड पॉइंट है द सरफेस वाटर फ्रॉम द कैरिज वे एंड shoulder should be drained off effectively as soon as
possible without allowing it to percolate to the subgrade. Okay, अभी यहाँ पे रोड है प्रॉपर, अगर हम लोग ने कैम्बर स्लोप प्रोवाइड किया है तो ही क्या होगा, पानी साइड गटर में जाएगा. ओके, अगर हम लोग ने प्रॉपर स्लोप एंड कैम्बर प्रोवाइड नहीं किया तो क्या होगा, पानी शोल्डर्स पे जमा होके वो नीचे परकोलेट होगा अंडरग्राउंड में और सबग्रेड जो लेयर है वो फेल होने के चांसेस होते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट है द हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल शुड बी एट लीस्ट 1 to 2 मीटर बिलो द सबग्रेड लेवल. मीन्स सपोज यहाँ पे अपना सरफेस रोड सरफेस है, पेवमेंट है, और यहाँ पे अगर हम लोग का ग्राउंड वाटर टेबल है. सो जो बॉटम मोस्ट लेयर है ये सबग्रेड लेयर है. सो यहाँ से डिस्टेंस कितना होना चाहिए जब भी हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, नॉर्मली 1.2 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि अगर हम लोग ने ये डिस्टेंस कम रखा तो जब भी ये वाटर लेवल हाई होगा तो सबग्रेड में डायरेक्टली पानी जाएगा यहाँ पे. तो अगर सबग्रेड में पानी गया तो अपर लेयर भी क्या हो गया, फेल होते हैं. इसीलिए हम लोग को क्या करना है, जो ग्राउंड वाटर टेबल है और बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ पेवमेंट है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1.2 मीटर रखना है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है द सरफेस ड्रेनेज शुड हैव सफिशिएंट कैपेसिटी टू कैरी अवे ऑल द सरफेस वाटर कलेक्टेड. जो साइज़ है साइड गटर्स की या कैच वाटर ड्रेन की जो साइज़ है वो क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए. जहाँ पे हैवी रेनफॉल है, अभी आपने ये एग्जांपल्स तो बॉम्बे में बहुत देखे हैं, मुंबई में थोड़ा हैवी रेन हुआ तो जहाँ सभी जगह वाटर लॉक होने के चांसेस होते हैं. कॉज ऑफ इनसफिशिएंट कैपेसिटी है, रेनफॉल ज़्यादा है और जो गटर्स की कैपेसिटी है वो कम है. ओके, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं. तो हम लोग को क्या करना है, सफिशिएंट कैपेसिटी में रेनफॉल की कैपेसिटी देख के हम लोग को वहाँ पे साइड गटर्स कंस्ट्रक्ट करने हैं. देन इन वाटर लॉक एरिया स्पेशल प्रिकॉशन शुड बी टेकन. ओके, वाटर लॉक एरिया में स्पेशल प्रिकॉशंस लेने हैं. देन हाईएस्ट फ्लड लेवल एटलीस्ट 0.6 मीटर अबव HFL. मीन्स क्या करना है, जहाँ पे हाईएस्ट फ्लड लेवल है, ओके, तो वहाँ पे भी जो पेवमेंट लेयर है वो 0.6 मीटर अबव होना चाहिए HFL से. ये सब पॉइंट्स हैं रिक्वायरमेंट ऑफ गुड ड्रेनेज सिस्टम के, कि जैसे अगर हम लोग सिस्टम भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो कैसे सिस्टम प्रोवाइड करना है. सब सरफेस, सब क्राइटेरियाज हम लोग को देखने हैं, सब सरफेस एंड सरफेस ड्रेनेज. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ रोड ड्रेनेज. फर्स्ट है सरफेस ड्रेनेज एंड नेक्स्ट है सब सरफेस ड्रेनेज. तो फर्स्ट सरफेस ड्रेनेज. The main aim of surface drainage is to remove free water away from road surface. जो रोड के ऊपर का पानी है उसको क्या करना है, रिमूव करना. वही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस ड्रेनेज. द सरफेस ड्रेनेज डील्स विद द अरेंजमेंट फॉर क्विकली एंड इफेक्टिवली लीडिंग अवे द वाटर दैट कलेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ पेवमेंट, शोल्डर्स, स्लोप्स ऑफ एम्बैंकमेंट, cuts and land adjoining the highway. सरफेस ड्रेनेज क्या है कि क्विकली एंड इफेक्टिवली सिस्टम है, बिकॉज स्लोप, ये रोड है, ओके, यहाँ पे साइड गटर्स है, साइड गटर्स को कनेक्टेड कैच वाटर ड्रेन्स होते हैं. सो क्या है, वो इजीली स्लोप से जो पानी जाता है वो पानी कलेक्ट करने का काम कौन करता है, सरफेस ड्रेनेज. अभी वो पानी कहाँ से आता है, फर्स्ट तो सरफेस ऑफ पेवमेंट है, शोल्डर है, स्लोप्स ऑफ एम्बैंकमेंट, कट है, देन हाईवे की बाजू की लैंड है. तो वहाँ से जो पानी आता है वो इफेक्टिवली ड्रेन आउट कौन करता है, सरफेस ड्रेनेज. ना थर्ड पॉइंट, इट इज़ नेसेसरी टू एंश्योर दैट द एडिक्वेट कैम्बर of proper shape given to the road surface during construction and maintained during the use of road. Okay, भी यही प्रॉपर होने के लिए जो क्विकली एंड इफेक्टिवली जो प्रॉपर कलेक्ट होता है वो कैसे होगा, अगर हम लोग ने प्रॉपर कैम्बर प्रोवाइड नहीं किया एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड के टाइम, तो क्या होगा,
तभी वे इफ़ेक्टिवली वर्क कर सकता है। इफ़ द कैम्बर एंड हम लोग ने प्रॉपर नहीं प्रोवाइड किया तो ये इफ़ेक्टिवली सरफेस ड्रेनेज वर्क्स नहीं करेगा। भी सरफेस ड्रेनेज के दो टाइप्स है। फर्स्ट वन इज़ अ साइड गटर्स एंड सेकेंड वन इज़ अ कैच वाटर ड्रेन। अभी ये प्रॉपर अगर सरफेस ड्रेनेज, अभी ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये प्रॉपर सरफेस ड्रेनेज अगर हम लोग ने साइड गटर से, कैच वाटर ड्रेन से अगर प्रॉपर नहीं प्रोवाइड किए हैं या उसके क्राइटेरियाज नहीं फॉलो किए तो ये सब प्रॉब्लम्स और आते हैं एंड देन फेलियर ऑफ रोड्स का रीजंस बनते हैं। ओके, में दो कंपोनेंट्स है सरफेस ड्रेनेज के। फर्स्ट है साइड गटर और साइड ड्रेन्स। ओके, ये आप लोग ने हिली एरियाज़ में भी देखा है। जो हम लोग ने हिल एरियाज़ में अभी चैप्टर देखा उसमें साइड गटर एंड कैच वाटर ड्रेन के फंक्शंस भी देखे, तो सेम फंक्शंस यहाँ पे भी है। These sides gutter are provided on roadside. The main function of side gutter is to collect and drain off rainwater falling over the road surface as well as on hill slope into any cross drainage work. Okay? अभी ये कनेक्शन कैसे रहेगा? साइड वाटर ड्रेन आप लोग ने गटर्स तो देखे ही है रोड पे। सो गटर्स कैच पिट में जो साइड ड्रेन है वो सब पानी किस में जमा होगा? कैच पिट में, और कैच पिट से डायरेक्टली वो क्रॉस ड्रेनेज वर्क में या डायरेक्टली कभी कभी क्रॉस ड्रेनेज वर्क को भी ये कनेक्ट होते हैं साइड ड्रेन। साइड ड्रेन का फंक्शन ही क्या है कि जो रोड सरफेस से पानी आ रहा है वो कलेक्ट करना। नेक्स्ट है, अभी ये दो पिक्चर्स में आप लोग देख रहे हैं इसको बोलते हैं साइड गटर्स, और ये सिस्टम ऐसी होती है साइड गटर्स की। ओपन है, यहाँ पे पूरा परफोरेटेड आयरन स्टील बार्स लगाए हैं। नेक्स्ट है कैच वाटर ड्रेन। कैच वाटर ड्रेन हिली एरियाज़ में भी है और नॉर्मली प्लेन एरियाज़ में कैसे प्रोवाइड करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ कैच वाटर ड्रेन इज टू इंटरसेप्ट द ड्रेन वाटर फ्रॉम हिल स्लोप which would otherwise rush onto the road and divert same into nearby cross drainage work. It breaks the continuity of flow and thereby reduces the velocity of water. अभी ये जो है पिक्चर में आप देख सकते हो या ये पिक्चर्स में देख सकते हो, ये है हम लोग के साइड ड्रेन मीन्स गटर्स बोल सकते हैं। एंड ये जो है कि यहाँ पे एक परफोरेटेड आयरन स्टील बार नेट जाली प्रोवाइड किया है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसी ही है। सो ये क्या होगा, साइड ड्रेन से पानी कैच वाटर ड्रेन में आ रहा है। हिली एरियाज़ में क्या होगा, हिली एरियाज़ में यहाँ पे ही इंटरसेप्ट किया है कैच वाटर ड्रेन प्रोवाइड करके। बिकॉज साइड गटर्स में क्या होगा, अगर ये कैच वाटर ड्रेन नहीं रहा, ये अगर यहाँ पे नहीं होगा तो डायरेक्टली पानी यहाँ पे आएगा। ओके, एंड ये ओवरफ्लो होगा हेवी रेनफॉल में। सो कैच वाटर ड्रेन पानी को इंटरसेप्ट करता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, साइड गटर्स की वेलोसिटी जो है, फ्लो का वेलोसिटी वो उसको कम कर देगा। और देन ये हम लोग बाद में कनेक्ट करते हैं नियरेस्ट क्रॉस ड्रेनेज वर्क। सो मेन फंक्शन क्या है, टू इंटरसेप्ट ड्रेन वाटर फ्रॉम हिल स्लोप और which would otherwise rush on the road and divert the same into nearby cross drainage work. ये मेन फंक्शन है कैच वाटर ड्रेन। ओके, बी आज के लेक्चर में हम लोग सरफेस ड्रेनेज देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सब सरफेस ड्रेनेज, देन टाइप्स ऑफ सब सरफेस ड्रेनेज एंड डिफरेंस बिटवीन सरफेस ड्रेनेज एंड सब सरफेस ड्रेनेज वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कुछ डाउट रहेगा तो हम लोग एंड ऑफ द चैप्टर एक डाउट सेशन रखेंगे, तभी आप लोग मुझे डाउट पूछ लें। थैंक यू एवरीवन।